हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास केमिकल काइनेटिक्स। एंड केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे हाउ टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स to which concentration terms are raised in rate law equation, that is order of reaction. And we know that order of reaction is experimental value and we can only determine it after doing the experiment. Integrated rate law method, it is used to determine the order of reaction on the basis of different data obtained from the experiment. These are placed in the rate law equation for different order reactions, and then for which the K will be constant, that will be its order of reaction. So first order reaction जो कि सबसे important है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ इक्वेशन दी गई है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर इन वैल्यूज को यहाँ प्लेस करके T की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कैसे कंसंट्रेशन कितने टाइम में कितनी डिकम्पोज होगा, कितना बचेगा, ये सब हम इसमें निकाल सकते हैं। आज हम इस मेथड से करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला जो कि हमें यूज करना है वो है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, एंड सेकेंड वन इज T हाफ for first order reaction is equal to 0.693 upon K. So ये दो फार्मूले हमें इन न्यूमेरिकल्स के लिए जो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को यूज करते हुए हमें कैलकुलेट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड, half life time is given, you have to calculate K, rate constant, and sometimes K is given, you have to find out the half life period. So for this numerical we will use this formula, T half is equal to 10 second, and as per formula K is equal to 0.693 divided by 10. So it will be equal to 0.0693 second minus 1. Second type of numerical which may be asked, half lifetime of a reaction is 2 minutes. Reaction is a first order. How much time will be required to reach to 10% of its initial amount? For that we have to complete this numerical in two steps. In step number 1 we have to find out the value of K with the help of half life time. So K is equal to 0.693 divided by T half, and that will be equal to 0.693 divided by 2 minutes, and value will be equal to minute minus 1. Value of K we have calculated. इस वैल्यू को यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना होगा हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रीच टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट. Now we have to use this formula. A means you can take it 100 and X is equal to, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि A माइनस एक्स दिया गया है या ओनली X दिया गया है. जब आपको लिखा हुआ है टू रीच टू, इट इज द पॉइंट टू रीच टू, इट मीन्स रिएक्टेड का अमाउंट 10% बचा है, रिड्यूस्ड टू. A माइनस एक्स आपको दिया गया है जो कि है 10. So placing these values, T is equal to 2.303 over K log A is equal to suppose 100. So A minus X is equal to 10. So equal to 10, and values are 2.303 divided by 0.346 equal to 6.65 minute. Third type of question is, a reaction of first order completes 40% in 60 seconds. How much time is required to complete by 75%? Complete by का मतलब only X आपको दिया गया है,
अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, जब आपको बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई एग्जाम्स में सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। स्टेप नंबर वन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट्स 40% इन 60 सेकेंड। इसके बेस पर आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के। के इज इक्वल टू 2.303, टी इज 60 सेकेंड, log a is suppose 100, you can take it 100 and complete 40%. 40% complete means x is given. So 100 minus 40 equal to 2.303, 60 log 100 divided by 60, and that will be equal to log 5 by 3. So value will be 2.303, 60 log 5 minus log 3 equal to 2.303 by 60 log 5 is equal to 0.6990 minus log 3 is equal to 0.4770. 2.303 over 60 into 222 equal to 0.0085. It is value of k. इसका यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितने टाइम में रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाती है बाय 75%. Now step number 2. स्टेप नंबर 2 में के जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने सॉल्व किया था उसको यूज करते हुए अब हम सेकंड स्टेप करेंगे और हम निकालेंगे टाइम। तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज होगा फॉर दैट टी इज इक्वल टू एंड रिएक्शन कंप्लीट्स बाय 75%। अगर ये 2 है, रिएक्शन कंप्लीट्स टू 75%, मतलब कि 75% बची है, 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। लेकिन अगर है कंप्लीट बाय 75%, इट मीन्स ओनली x इज गिवन। तो यहां पर वैल्यू हो गई 100 माइनस 75। तो t की वैल्यू होगी 2.303.0085 log 100 upon 25 equal to 4, and that will be equal to 2.303.0085 2 log 2. So it will be in seconds. For the competition purposes, you can use this equation without calculating the value of k. So you have calculated that the time is equal to 2.303 divided by k log 100 divided by 60, and that is time for 40% and time for 75% equal to 2.303 divided by k log 100 divided by 25. ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। कंपटीशन पर्पस में आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो, बट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपको पहले स्टेप नंबर 1 होगा, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। वहां तक आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। उस के की वैल्यू को फिर आप सेकंड पार्ट में प्लेस करोगे। इस तरीके से आप टाइम को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर हम इस फार्मूले को यूज करते हुए फॉर कॉम्पिटिशन पर्पस शॉर्ट टर्म से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विच मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, दैट इज prove that time required for the completion of 99.9% of the reaction is 10 times of the time required for completion of half of the reaction. अब इस एग्जाम्पल में जरूरी नहीं कि आप पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसके बाद आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें। यहां पर इसको हम कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। सो हमारे सामने दो इक्वेशंस बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 एग्जांपल में हमें दो इक्वेशंस बनानी होंगी। नंबर 1
time required for the 99.9% completion of reaction means X is 99.9% and equal to 2.303 over K log A upon A minus X. So here X is 99.9%. It means A minus X is equal to 100 minus 99.9 means 0.1%. 0.1% means A minus X is equal to 0.1% of value of A. So we will place this value equal to 2.303 K log A is equal to 100 and A minus X is equal to 0.1. So equal to 2.303 K divided by K log 1000 equal to 2.303 divided by K into 3 log 10 equal to 2.303 K multiplied by 3. Equation number 1 is in this. In second case, time required for half of the reaction, it will be equal to 2.303 over K log A divided by A minus X. So 2.303 over K, it will be equal to A divided by A by 2 and equal to 2.303 log 2. So अब ये सेकेंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे फर्स्ट के साथ में कंपेयर करते हुए और वैल्यू होगी T 99.9% डिवाइडेड बाय T 50% इक्वल टू 2.303 K multiplied by 3 as per equation number 1 divided by 2.303 divided by K log 2. So these two values are cancelled and it will be equal to 3 divided by log 2 is 0.3010. So the ratio of time required for completion of 99.9% and time required for 50% of the reaction will be equal to 10 times of time required for 50% completion of the reaction. तो आपके सामने दो तरह के न्यूमेरिकल हो गए यहाँ पर, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, दोनों का कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको सॉल्व नहीं करनी है. यू हैव टू मेक वन इक्वेशन देन इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को कंपेयर करते हो स्टेप नंबर 3 में. ये स्टेप नंबर 3 होगा आपका जिसमें कि दोनों को कंपेयर करेंगे. ये वैल्यू आ गई 10 एंड दैट इज द आंसर प्रूव्ड. तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. % वन न्यूमेरिकल इन 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स को यूज करते हुए उसके बेस पर आप और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.